Hello everyone, welcome to today's lecture on the Shanghai Cooperation Organization SCO. Recently, External Affairs Minister Mr. S. Jaishankar attended the 23rd Council of Heads of Government meeting in Islamabad, Pakistan, marking a significant event in India's engagement with the SCO. It was the first visit to Pakistan by a high-ranking Indian minister in nearly a decade, amidst the ongoing tensions between the two nations over issues such as Kashmir and cross-border terrorism. The SCO is considered an influential economic and security bloc. Therefore, it is important to know about the SCO and its significance for India from a broader perspective. UPSC syllabus in preliminary examination, current events of national and international importance. In main examinations, General Studies Paper 2, regional groupings and agreements involving India and affecting India's interests and important international institutions. And also other areas of relevance, UPSC aspirants will also find it useful in essays and current affairs for the personality test. So this topic is very important for civil services examination and also state PCS exams. Now, what will you learn from this lecture? What is the Shanghai Cooperation Organization? Shanghai Cooperation Organization क्या है? And next is, how has the Shanghai Cooperation Organization evolved? Next is, how does the Shanghai Cooperation Organization work? And what are the key highlights of the SCO Summit 2024? And next is, what is the significance of the SCO for India? And what are the shortcomings of the SCO? Now we discuss one by one. First question is, what is the Shanghai Cooperation Organization? शंघाई सहयोग संगठन क्या है? इसे शार्ट में SCO बोलते हैं. फुल फॉर्म SCO एक स्थायी अंतर सरकारी अंतरराष्ट्रीय संगठन है. इसका मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों के बीच अच्छे संबंधों को बढ़ावा देना, आपसी विश्वास को मजबूत करना, क्षेत्र में शांति और सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने के लिए सामूहिक प्रयास करना और व्यापार, अर्थव्यवस्था, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, संस्कृत, ऊर्जा, परिवहन, पर्यटन, पर्यावरण संरक्षण जैसे विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावी सहयोग को बढ़ावा देना. संगठन का उद्देश्य एक नई लोकतांत्रिक, न्याय संगत और तर्कसंगत राजनीतिक और आर्थिक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की स्थापना की दिशा में आगे बढ़ना भी है. The Shanghai Cooperation Organization is a permanent intergovernmental international organization. The main objective of the SCO are to promote good relations among member countries, strengthen mutual confidence, make collective efforts to maintain peace, security and stability in the region, and promote effective cooperation in various fields such as trade and economy, science and technology, culture, energy, transportation, tourism, environmental protection, etc. The organization also aims to move towards the establishment of a new democratic, just and rational political and economic international order. Now you know
member of countries. How many member of countries in SCO organization? Important questions for preliminary examination. The member countries are India, Iran, Kazakhstan, China, Kyrgyzstan, Pakistan, Russia, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान एंड बेलारूस। तो अब आप देखिए मैप में, देखिए इमेजिन करिए इंडिया यहां पर आपका स्थित है, ईरान, पाकिस्तान, चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, बेलारूस एंड उज्बेकिस्तान। तो इस तरह से काउंट करिए, हाउ मेनी कंट्री, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मेंबर ऑफ कंट्रीज। तो आप अब देखिए कि ये जो एससीओ में मेंबर ऑफ कंट्रीज है, इनमें यदि एरिया वाइज देखिए तो सबसे ज्यादा एरिया रशिया का है, देन चाइना, और चाइना के बाद इंडिया। एज द 10th मेंबर ऑन द 4th जुलाई 2024, ये जो 10वां मेंबर है लास्ट में बेलारूस, और ये जो है ज्वाइन किया 4 जुलाई 2024। अफगानिस्तान एंड मंगोलिया होल्ड ऑब्जर्वर स्टेटस। अफगानिस्तान और मंगोलिया को ऑब्जर्वर स्टेटस का दर्जा दिया गया। अजरबैजान, आर्मेनिया, बहरीन, कंबोडिया, इजिप्ट, कुवैत, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, कतर, सऊदी अरेबिया, श्रीलंका, टर्की एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट हैव द डायलॉग पार्टनर स्टेटस। नाउ second questions is how has the Shanghai Cooperation Organization evolved? संघाई सहयोग संगठन का विकास कैसे हुआ? आपके मन में जिज्ञासा होगी। इस संगठन की शुरुआत 1996 में स्थापित संघाई 5 से हुई थी, और इसमें चाइना, रसिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान शामिल थे। यानी स्टार्टिंग में देखिए केवल 5 मेंबर ऑफ कंट्रीज थे इसमें। 1991 में यूएसएसआर यानी संयुक्त सोवियत संघ के 15 स्वतंत्र देशों में विघटन के साथ ही इस क्षेत्र में चरमपंथी धार्मिक समूह और जातीय तनावों के सामने आने की चिंताएं थी, और इन्हीं मुद्दों को संभालने के लिए सुरक्षा मामलों पर सहयोग के लिए एक ग्रुप बनाया गया। यह सीमा क्षेत्र में सैन्य क्षेत्र में विश्वास निर्माण पर समझौते और सीमा क्षेत्र में सशस्त्र बलों की आपसी कमी पर समझौते पर आधारित एक राजनीतिक संघ था। द संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन originated from the Shanghai 5 established in 1996, consisting of China, Russia, Kazakhstan, Kyrgyzstan and Tajikistan. With the dissolution of the USSR in 1991 into 15 independent countries, there were concerns in the region about extremist religious groups and ethnic tensions coming to the fore. To manage those issues, a grouping was created for cooperation on security matters. It was a political association based on agreement on confidence building in the military field, in the broader area, and the agreement on the mutual reduction of armed forces in the border areas. After 15 जून 2001 को संघाई में एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में एससीओ की स्थापना की गई, और इसमें छठे मेंबर के रूप में उज्बेकिस्तान को शामिल किया गया। एससीओ का इनिशियली ध्यान आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद जैसे मुद्दों को संबोधित करने के लिए मध्य एशिया के भीतर सहयोग करने पर था। इसके चार्टर पर जून 2002 में सेंट पीटर्सबर्ग शिखर सम्मेलन में हस्ताक्षर किए गए,
और 19 सितंबर 2003 को प्रभावी हुआ। यह चार्टर संगठन के उद्देश्यों, सिद्धांतों, संरचना और गतिविधि के प्राथमिक क्षेत्रों को रेखांकित करता है। इसके अलावा 2006 में एससीओ ने ग्लोबल टेररिज्म को वित्त पोषित करने के साधन के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने की योजना की घोषणा की। बिल्डिंग ऑन दिस, SCO was established on June 15, 2001 in the Shanghai as an international organization and also included Uzbekistan as a sixth member. The SCO was initially focused on collaborating with Central Asia to address issues such as terrorism, separatism, and extremism. The charter of the SCO was signed at the St. Petersburg Summit in the June 2002 and became effective on September 19, 2003. This charter outlines an organization's objectives, principles, structures, and primary areas of activity. Additionally, in 2006, the SCO announced plans to combat international drug trafficking as the means to finance global terrorism. सितंबर 2003 में शंघाई सहयोग संगठन के देशों के प्रमुखों ने बहुपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग के 20 वर्षीय कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए और इसका मकसद था व्यापार और निवेश के लिए अनुकूल वातावरण बनाना, उसको पुनर्जीवित करके सदस्य देशों के क्षेत्र में एक मुक्त व्यापार क्षेत्र स्थापित करना। In September 2003, the heads of the SCO member states signed a 20-year program of multilateral trade and economic cooperation. The program aims to establish a free trade zone within a territory of the SCO member countries by revitalizing the process of creating a favorable environment for trade and investment. भारत और पाकिस्तान 2017 में अस्ताना में शंघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्ष परिषद की बैठक में संगठन के पूर्ण मेंबर बने। इसका यहाँ आपको ये ध्यान रखना आवश्यक है कि भारत और पाकिस्तान एक ही साथ 2017 में SCO के मेंबर बने। 2023 में संगठन के पूर्ण सदस्य का दर्जा इस्लामिक रिपब्लिकन ऑफ ईरान को दिया गया और इस बार बेलारूस संगठन का 10वां मेंबर बना। India and Pakistan became full members of the organization in 2017 at the meeting of the heads of the State Council of the Shanghai Cooperation Organization in Astana. In 2023, the status of a full member of the organization was granted to the Islamic Republic of Iran. This time, Belarus became the 10th member of the organization. अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना जरूरी है अपने मन में कि there are criteria for becoming a full member of SCO. You think? Now, next question is how does the SCO work and what are the key highlights of the SCO Summit 2024? Important questions. SCO कैसे काम करता है और SCO शिखर सम्मेलन 2024 की मुख्य विशेषताएं क्या है? SCO का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय राष्ट्राध्यक्ष परिषद है। SCO गतिविधि से संबंधित सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर निर्णय लेने और निर्देश देने के लिए वर्ष में एक बार बैठक करता है, जिसकी अध्यक्षता बैठक आयोजित करने वाले राष्ट्राध्यक्ष द्वारा की जाती है। The SCO's highest decision making body is the heads of the state councils. It meets once a year to make decisions and provide instructions on all important issues regarding the SCO activity. A meeting of the head of the state councils is chaired by the head of the state organizing meetings. HSC के अलावा शासनाध्यक्ष परिषद की बैठक वर्ष में एक बार होती है, जिसमें संगठन के ढांचे के भीतर बहुपक्षीय सहयोग रणनीति और प्राथमिकता निर्देशों पर चर्चा की जाती है। आर्थिक और अन्य क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सहयोग मुद्दों पर विचार किया जाता है तथा संगठन के वार्षिक बजट को मंजूरी दी जाती है। Besides HSC, the heads of the government council meet once a year to discuss a multilateral
cooperation strategy and priority directions within the organizational framework to address important cooperation issues in economic and other areas and to approve the organization's annual budget. क्या आप जानते हैं, डू यू नो, कि शासनाध्यक्षों की परिषद की नियमित बैठक का स्थान आमतौर पर एससीओ सदस्य राज्यों के नामों के रूसी वर्णमाला के क्रम में निर्धारित किया जाता है। यह महत्वपूर्ण चीज है। द वेन्यू ऑफ रेगुलर मीटिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट is generally determined in the Russian alphabetic order of name of the SCO member states. संगठन के दो स्थायी निकाय हैं। बीजिंग जो चाइना की कैपिटल है, यहां पर इसका सेक्रेटरीट है, और ताशकंद में क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना। एससीओ के जनरल सेक्रेटरी और आरएटीएस कार्यकारी समिति के डायरेक्टर को एचएससी द्वारा 3 साल की अवधि के लिए अपॉइंटमेंट किया जाता है। द ऑर्गेनाइजेशन हैज 2 परमानेंट बॉडी, द सेक्रेटरीट इन बीजिंग चाइना एंड रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर इन ताशकंद। द एससीओ सेक्रेटरी जनरल एंड आरएटीएस मीन्स रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर एग्जीक्यूटिव कमेटी डायरेक्टर आर द अपॉइंटेड बाय द HSC for a period of 3 years. According to the official website of the SCO, SCO का देखिए ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, ठीक है। तो आप ये बेसिक चीज है, आप कोई से भी मिल जाएगा, लेकिन मैं लिख देता हूं ENG.SECT.SCO.org। सदस्य देश न्यायपूर्ण शांति, सद्भाव और विकास के लिए विश्व एकता पर एससीओ पहल को अपनाएंगे। इसमें शामिल होने के लिए वे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को आमंत्रित करते हैं। The member states will adopt the SCO initiative on world unity for the just peace, harmony and development, which they invite the international community to join. सदस्य ऐसे किसी भी डिसीजन में भाग न लें जिसका उद्देश्य आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना हो और अंतर्राष्ट्रीय कानून को खंडित करना हो। The member states do not take part in any decisions that are the aimed at interfering in internal affairs and contradicts international law। सदस्य देशों ने कहा कि यूनाइटेड नेशन में व्यापक सुधार के माध्यम से विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व बढ़ाकर संयुक्त राष्ट्र की प्रतिष्ठा और दक्षता को मजबूत किया जा सकता है। द मेंबर स्टेट नोट दैट द यूनाइटेड नेशंस प्रेस्टीज एंड इफिशियंसी कैन बी स्ट्रेंथेंड by increasing and representation of developing countries through the comprehensive reform of the United Nations। और मेंबर ऑफ कंट्रीज इस बात की पुष्टि करते हैं कि मध्य एशिया एससीओ का मुख्य भाग है। द मेंबर स्टेट्स रिफॉर्म दैट सेंट्रल एशिया रिप्रेजेंट द कोर पार्ट ऑफ द एससीओ। आतंकवाद, अलगाववाद, उग्रवाद से निपटने के लिए अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए मेंबर कंट्रीज ने आतंकवादी, अलगाववादी और उग्रवादी समूहों को स्वार्थी उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करने के प्रयासों की अस्वीकारता पर भी जोर दिया है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से यूनाइटेड नेशन के भीतर अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से निपटने के लिए एक व्यापक सम्मेलन को अपनाने पर आम सहमति बनाने के लिए दबाव डालने का भी आह्वान किया है। वाइल रिफॉर्मिंग देयर फर्म कमिटमेंट टू कम्बैटिंग टेररिज्म, सेपरेटिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म, the member states emphasizes the unacceptability of the attempts to use terrorists, separatists and extremist groups for self-serving purposes. They call on the international community to push for achieving consensus on the adoption of a comprehensive convention on combating international terrorism with the United Nations। और आगामी अवधि के लिए एससीओ की अध्यक्षता पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को सौंप दी गई है।
एससीओ राष्ट्राध्यक्ष परिषद की अगली बैठक 2025 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना में होगी। इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको याद रखना है, प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एससीओ की आगामी बैठक किस देश में आयोजित होगी। द एससीओ चेयरमैनशिप हैज बीन पास्ड टू द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना फॉर द फोर्थकमिंग period. The next meeting on the SCO heads of the State Council will take place in the People's Republic of China in 2025. Russian and Chinese are the official working language of the SCO. आपको यह भी पता होना चाहिए कि SCO का जो ऑफिशियल कामकाज की जो भाषा है वो रशियन और चाइनीज में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the significance of the SCO for India? इसका मतलब यह है कि भारत के लिए SCO का क्या महत्व है। SCO उन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में से एक है जो सिक्योरिटी इश्यू से निपटते हैं और इसके मुख्य रूप से एशियाई सदस्य हैं। भारत के लिए SCO का बहुत महत्व है। SCO is one of the few international organizations which deal with security issues and primarily has Asian members. The SCO holds great significance for India. अब जैसे देखिए, फर्स्ट इंपॉर्टेंट इज फोरम फॉर कोऑपरेशन विद सेंट्रल एशियन कंट्रीज, मतलब मध्य एशियाई देशों के साथ सहयोग के लिए एक मंच है। ये आपस में जो सेंट्रल एशिया के जो देश हैं उनको जहां भी आवश्यकता पड़े उसको सहयोग करे के लिए एक मंच देता है एससीओ की सदस्यता भारत को एक ऐसे मंच में भाग लेने की अनुमति देती है जो सेंट्रल एशियाई देशों के साथ सहयोग के अपने दायरों को बढ़ाता है, जिनके 1991 में गठन के बाद से भारत के साथ विशेष रूप से घनिष्ठ संबंध नहीं रहे हैं और आम सुरक्षा मुद्दों पर प्रमुख क्षेत्रीय अभिनेताओं के साथ संचार बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है। The membership of SCO allows India to participate in a forum which enhances to scope of cooperation with Central Asian countries which have not had particularly close relations with India since their formation in 1991. It also matters to maintain communication with major regional across on common security issues. अब यहां पर देखिए कि एससीओ की सदस्यता भारत की एक प्रमुख अखिल एशियाई खिलाड़ी के रूप में स्थिति को भी मजबूत करती है जो दक्षिण एशिया प्रतिमान में सीमित है। सेकंड काउंटरिंग टेररिज्म, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। आतंकवाद का मुकाबला, भारत के लिए दो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्ट हैं, आतंकवाद का मुकाबला और कनेक्टिविटी। और यह एससीओ का मुख्य उद्देश्य तीन बुराइयों के खिलाफ सहयोगात्मक रूप में से काम करने के साथ अच्छी तरह से मेल खाते हैं। भारत एससीओ के आतंकवाद रोधी निकाय ताशकंद स्थित क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी संरचना से खुफिया जानकारी और जानकारी तक पहुंचाता है और जहां पर गैर पाकिस्तान केंद्रित आतंकवाद रोधी जानकारी तक पहुंच प्रदान करता है। For India, two important objectives are counter-terrorism and connectivity. These sit well with the SCO's main objective of working cooperatively against three evils. India wants access to intelligence and information from SCO's counter-terrorism body, the Tashkent-based regional anti-terrorism structures. It provides access to non-Pakistan centered counter-terrorism information there. Now, next is balancing Chinese dominance in the region. यह भी भारत के लिए महत्वपूर्ण है। क्षेत्र में चीनी प्रभुत्व को संतुलित करना। एससीओ भारत को क्षेत्र में चीन के प्रभाव को मुकाबला करने का अवसर देता है और मॉस्को एससीओ में भारत की उपस्थिति को मध्य एशिया में चुनावी चाइनीज प्रभुत्व के लिए एक संभावित प्रतिकारक शक्ति के रूप में देखता है। यह रूस ही था जिसने समूह में भारत की सदस्यता के लिए दबाव बनाना शुरू किया।
लगभग उसी समय जब चाइना के शी जिनपिंग ने कजाकिस्तान में अपनी बेल्ट एंड रोड पहल की शुरुआत की थी। द एससीओ प्रोवाइड्स इंडिया विथ अपॉर्चुनिटीज फॉर काउंटरिंग द डोमिनेंस ऑफ चाइना इन द रीजन। Moscow sees India's presence in SCO as a potential countervailing force a Chinese dominance of Central Asia. It was Russia that began pushing for India's membership of the group around the time that Chinese Xi Jinping launched his Belt and Road Initiative in Kazakhstan. Belt and Road Initiative चाइना का एक विशाल व्यापार और पुरातात्विक ढांचा नेटवर्क है जो प्राचीन सिल्क रूट पर आधारित एक मॉडल देश को पश्चिम से जोड़ना चाहता है। भारत एक आलोचक होने के नाते BRI का समर्थन नहीं करता। BRI मीन्स बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और इस प्रोजेक्ट में शामिल से खारिज कर दिया है। इसका मेन कारण है कि BRI पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले भारतीय भूभाग से होकर गुजरता है, यानी जिसको हम बोलते हैं पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो एक विवादित है। तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, चाइनाज MBS बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इज ए मैसिव ट्रेड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क that seeks to connect the country with the West in a model based on the ancient Silk Route. India does not support the BRI and has declined to join the project. The major reason for this is that the BRI passes through the Indian territory illegally held by Pakistan. Next, importance is क्लोजर इंडियन रशियन कोऑपरेशन, भारत रूस के बीच घनिष्ठ सहयोग। दरअसल एससीओ ने दिल्ली को मॉस्को के साथ अपनी निकटता को प्रदर्शित करने के लिए एक फोरम प्रदान किया है। रशिया ने 2016 के ताशकंद शिखर सम्मेलन के दौरान एससीओ में भारत की पूर्ण सदस्यता का समर्थन किया था। रूस के इस कदम ने यह प्रदर्शित किया कि रूस इस क्षेत्र में भारत का एक विश्वसनीय मित्र है। और इस तरह से हम संक्षेप में यह कह सकते हैं कि एससीओ में भारत की सदस्यता इसकी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को बढ़ाती है और इसे बहुपक्षीय वैश्विक व्यवस्था को बढ़ावा देने की अनुमति देती है। एससीओ भारत को मध्य एशियाई सदस्य देशों तक अधिक पहुंच प्रदान करता है और यह भारत की कनेक्ट सेंट्रल एशिया नीति के लिए महत्वपूर्ण है। इन समरी, we can say that India's membership in the SCO enhances its international standing and allows to promote a multilateral global order. SCO provides India with the greater access to the Central Asian member countries and is crucial for India's Connect Central Asia policy. Next question is, what are the shortcomings of the SCO? SCO की कमियां क्या है? SCO के जो वरिष्ठ नेतागण हैं SCO को राजनयिक युद्ध क्षेत्र बताते हैं। भारत के लिए चुनौती SCO का इस्तेमाल अपने हितों को आगे बढ़ाने के लिए करना है, न कि इसके जाल में फंसना है। SCO की कुछ कमियां हैं। SCO's veterans describes the SCO as a diplomatic battlefield. The challenges for India is using the SCO to further its interests instead of getting trapped. Some of the shortcoming SCOs are like as a disputes among the member countries. इस सदस्य देशों के बीच यदि विवाद होता है, हालांकि SCO द्विपक्षीय विवादों का मंच नहीं है, फिर भी कुछ द्विपक्षीय मतभेद और विवादों ने समूह पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है, जिससे भागीदारों के बीच संबंधों को प्रतिबंधित करने में कठिनाई के कारण संगठन की प्रासंगिकता पर सवाल उठता है। While the SCO is not a forum for bilateral disputes, certain bilateral divergences, differences and disputes have invariably cast a shadow on the groupings, raising the questions on the relevance of the organizations given the difficulty in managing ties among the partners.
यदि एससीओ का मुख्य मकसद यूरेशिया में शांति को बढ़ावा देना था, तो सदस्य देशों के बीच अंतर स्टेट, इंटर स्टेट और इंटर स्टेट संघर्षों से निपटने की क्षमता अब जांच के दायरे में है। मामले और जटिल बनाने के लिए यूक्रेन में रूस का युद्ध मॉस्को की अपने पिछवाड़े में प्रधानता बनाए रखने की क्षमता पर सवाल उठा रहा है। इस बीच चाइना का उदय आंतरिक एशिया में बीजिंग के प्रमुख शक्ति के रूप में उभरने की संभावनाओं को बढ़ा रहा है। Means, if the main objective of the SCO was to promote peace in Eurasia, its ability to cope with the inter-state and interstate conflicts among the members of state is now under scrutiny. To make matters more complicated, Russia's war in Ukraine is raising question about the Moscow's capacity to sustain primacy in its backyard. Meanwhile, China's rise is increasing the prospects for Beijing emergence as the dominant force in Inner Asia. चाइना एंड रसिया के बीच प्रभुत्व के लिए क्या प्रतिस्पर्धा है? कॉम्पिटिशन फॉर डोमिनेंस बिटवीन चाइना एंड रसिया। चाइना और रसिया एससीओ पर हावी हैं, क्योंकि दोनों ही अपने आप में पावरफुल कंट्री हैं, जबकि पश्चिमी वेस्टर्न कंट्रीज एससीओ को चाइना और सहयोगी रूस द्वारा संचालित एक आरामदायक क्लब के रूप में देखता है। समूह के कामकाज से परिचित लोग इस मंच को एक ऐसे स्थान के रूप में वर्णित करते हैं कि जहां दो प्रमुख शक्तियों के प्रभाव के लिए एक दूसरे के लिए प्रतिस्पर्धा करती है। 5 मध्य एशियाई गणराज्यों में से 4 एससीओ के मेंबर हैं। रसिया ने इस संसाधन समृद्ध गणराज्यों को, जो तत्कालीन सोवियत संघ का हिस्सा थे, अपने रणनीतिक पिछवाड़े के रूप में देखा है, लेकिन यह इस क्षेत्र को बढ़ते चीनी पदचिह्न को रोकने में सक्षम नहीं है, जो रणनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा कारणों से प्रेरित है। यह प्रतिस्पर्धा और भी स्पष्ट हो गई है क्योंकि बीजिंग के मध्य एशियाई C5 तक पहुंचने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के साथ गति पकड़ी है और पिछले साल यूक्रेन में अपने युद्ध के साथ रूस की व्यस्तता के दौरान और भी तेज हो गई, क्योंकि रूस यूक्रेन में युद्ध में उलझा हुआ है और चाइना जो है इसी का फायदा उठाना चाहता है। तो एक तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि while the West views of the SCO as a cozy club run by China and ally Russia, though familiar with the workings of the group, describes the forum as a venue where the two dominant powers are in competition with each other in influence. 4 of the 5 Central Asian republics are members of SCO. Russia has viewed these resource-rich republics that were part of the irreducible Soviet Union as its strategic backyard. But it has not been able to stop a growing Chinese footprint over the region, which has been driven both the strategic, economic and security regions. The competition has been all the more apparent as Beijing's outreach to the Central Asia or C5 cut momentum with the Belt and Road Initiative and accelerated over the last year during Russia's preoccupation with its war in Ukraine. नेक्स्ट है जो कि सदस्यों के अलग अलग हित हैं, डाइवर्जेंट इंटरेस्ट ऑफ द मेंबर कंट्रीज। क्या है कि एससीओ के जितने भी मेंबर ऑफ कंट्रीज हैं उन सभी के हित और उद्देश्य बहुत व्यापक हैं। इससे अलग अलग विषयों पर सहमति बनाना मुश्किल हो सकता है। इससे संगठन का नामांकन सीमित हो सकता है। रूस और ईरान और मध्य एशियाई देशों के साथ भारत के मजबूत संबंध हैं। हालांकि बीजिंग और इस्लामाबाद के साथ मतभेद चुनौती बन सकते हैं, लेकिन न्यू दिल्ली के लिए सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि इस समूह के जरिए अदर एससीओ कंट्रीज, खासतौर पर मध्य एशियाई के देशों के साथ उनके संबंधों को बढ़ावा मिले। अब सवाल ये उठता है कि क्षेत्रीय शांति और स्थिरता बनाए रखने में एससीओ को कुशल बनाने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए। What steps should be taken to make SCO efficient in maintaining
रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी। तो देखिए यहां पर इस टॉपिक से प्रिलिमिनरी एग्जाम में भी और मेन एग्जाम में भी क्वेश्चन बनेंगे, इसलिए ध्यानपूर्वक यदि आप लेक्चर को अटेंड करेंगे तो डेफिनेटली मेरा मानना है कि आप मेन से रिलेटेड क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करेंगे, साथ ही प्रीलिम्स के भी क्वेश्चन को सही करेंगे। तो आज इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।